Very good morning to all of you. I'm Dr. Ravin Prasai, Associate Professor of Mathematics Good morning, in sir. Mathematics at Chamini Devi Group of Institution Indore. I welcome to all of you on our 16th lecture, unit number 3. After 6 minutes, I will start the session. 36. $14. 21. 38. 52. 56. 52. 56. 26. 'Sachin Pandey. 28. 'Shashank Pandey. 18. 20. 18. 20. 48. 35. 19. 46. 41. 57. 52. 16. 'Gaurav Chauhan. Pradeep Jadhav. 45. 29. 4. 'Sumit Parvade.
सर 15। गोरा हो गया बेटा तेरा? ओके सर। अजय लेदी तुम्हारा भी हो गया बेटे? अर्पित वर्मा, I have taken attendance. Pradeep Jadhav also have taken attendance. (22) and 25. After 1 minute, I will start the session. Okay, dear students of BTech second year civil branch, I am Dr. Anand Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering, Science, Humanity Department at Chamini Devi Group of Institution, Indore. I welcome to you on our 16 lecture, unit number 3. As the last lecture on unit number 3, then we start tomorrow the unit number 4 as the Laplace transforms. So I will discuss the example of the one-dimensional wave equation with revision of the finite difference method. Some steps I have been explaining already in the previous class. Let us once again understand. This is the basic formula I have been derived in the previous class as special case. So this is our example as I started previously. Some steps I have been explaining. Now I will continue if time permits to me today. Then I will recall once again the initial steps of these examples. So our example is solve or evaluate the pivot values of the equation as by taking the common difference along x direction as h equal to along h direction as x direction one and along y direction is t, time domain is 1.25 subject to this boundary and the two initial conditions. How can we entertain this type of problem? Let us see. So this is our given problem. Just compare with our standard problem as the one-dimensional wave equation. This you have to be remembered. Roll number 56, Vishnu Chauhan. So we will find the value of the constant as c square equal to 16 from the given problems.
So now we have the finite difference scheme or the formula here. This is the most general formula, but here I have to find the value of alpha, because before this we are substituting the value of c square as given to you 16 for this example. So this formula is converted into this expression is, and now h equal to 1, so therefore alpha equal to k, because your basic formula of alpha is k by h, तो h की वैल्यू 1 है, इसलिए आपका अल्फा की वैल्यू k के बराबर हो गई है। ये आपने पिछले क्लास में सीखा है, इसलिए जो न्यू कमर्स है उसके लिए रिकॉल कर रहे हैं। वेयर अल्फा का फार्मूला भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में डिक्टेट कर दिया है। जो लोग ने पिछली बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो लोग स्लाइड पूरा होने के बाद स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं पैरेलल में। नाउ टू मेक दिस इक्वेशन टू एज सिंपल, सिलेक्ट अल्फा, अल्फा की वैल्यू सिंपल। इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोएफिशिएंट को uij के जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, ताकि ये आपका प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हाँ जी, हम लोग अपने स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका ये आई थिंक ये स्लाइड पूरी हो गई है, इसलिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन लोगों ने पहले नहीं लिया है, या जो कॉपी में जिन्होंने लिखा था कुछ पॉइंट छूट गया था वो वापस नोट कर सकते हैं। सर इसके पीछे वाली स्लाइड भी एक बार बता दो। ठीक है बेटे, ये स्टेप पार्ट ये है पिछला स्लाइड जिसमें हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। आगे बढ़े बेटे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटे। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सामने बोर्ड में जैसे पढ़ाते हैं क्लासरूम में, उसी तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करके। काफी टाइम लगता है इसको लेक्चर बनाने में। अब आ रहे हैं हम अगले स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वही जो हमने कहा कि हम उसके कोएफिशिएंट को 0 पुट कर देते हैं, तो 1 - 16 k स्क्वायर, तो यहाँ से आपको k मतलब y डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको मिल जाती है, जो आपके लिए इजी गोइंग रहता है। अब हम हमारे इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में इस तरह से एंटरटेन करेंगे, और जो भी आपको यहाँ पर जब हम बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, जिसको अपन मैच पॉइंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। अब वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, हमें कहां से कहां तक निकालना है। फॉर टाइम t = 0 से लेके 1.25 सेकंड तक हमें जाना है। t की वैल्यू हमारी होती है j ऑफ k, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड। आप यहाँ पर चूंकि t की जगह हमारा k चल रहा है, इसलिए हमें t की ओरिजिनल वैल्यू रखना होगी j × k। तो यहाँ पर जहां पर t था उसकी जगह jk रख दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। k की वैल्यू आपके पास मालूम है जो आपने इवैल्यूएट की है, इसलिए हम ये स्टेप पहले नहीं कर सकते हैं। बुक्स में आगे पीछे दे रखा है, रिवर्स बार में दे रखा है, कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए आप इस ऑर्डर में प्रॉब्लम को समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा आगे बढ़ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर दोनों जगह k की वैल्यू 0.25 रख के सिंप्लीफाई किया, तो आपके सामने j की वैल्यू मिल गई। j = 0 से j = 1.25 को आप 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ये इसका मैंने रीजन भी लिख दिया अब दोबारा आपके सामने कि k की वैल्यू 0.25 रखी है हमने। इससे हमको ये पता लग गया है कि हमें y डायरेक्शन में कहां से कहां तक जाना है। 0 से 5 तक जाना है, तो एक बॉक्स की लेंथ हम 1 लेंगे, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लाइक दिस। एम राइट? डायग्राम बनाने के लिए हमें बॉक्स कितने लेना है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए हमें को i और j की वैल्यू क्लियर करना होती है। नाउ हमने आपके सामने पहले एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशंस का।
फिर हम इनिशियल कंडीशन को एनालाइज करेंगे। टी हमारे लिए आपके सामने लिखा हुआ है, टी का मतलब क्या है, इसको हम आई जे के टर्म्स में लिखेंगे। 0 ऑफ जे, टी का मतलब है जे, ठीक है, तो सफिक्स में इसको यूज करेंगे यू। 0 ऑफ जे इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 तक जा रही, मतलब आई की वैल्यू 5 है, जे टी का मतलब जे है, और आपके पास जे का रेंज दे रखा है जो आपने एनालाइज करके फाइंड आउट किया है, वो है जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 5। यहाँ तक आप समझ लीजिए ये आपका। यार क्यों पावर बढ़ा लेता है रे? हाँ जी बोलिए बेटे। रोल नंबर 1, कोई भी एक जना बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं बेटे? ये बात पहले भी समझाई थी, आज दोबारा रिकॉल किया आपके सामने। बोले बेटे, ये स्लाइड में इस स्टेप तक, इक्वेशन 4 तक समझने में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सारी चीज क्लियर कट कर रखी है मैंने, एक एक स्टेप यहाँ पर बता रखी है। हाँ बोलिए कर्तव्य चौहान, कुछ बोल रहे थे बेटे, अब आप बोलिए। हो गया बेटे आर्ची, टाइम पे आया करो क्लास में। हाँ बोलिए बेटे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट सभी ने? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्लाइड में? श्रेयांश नो सर। क्लियर कट? सर ओके बेटे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पहले हमें इनिशियल का कंडीशन का एनालिसिस करना होगा। इसी तरह से जो भी आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, ये हमारी सबसे पहले इनिशियल कंडीशन है। दो इनिशियल कंडीशन दी है, पहले लिखी अपन ने, x का मतलब i और y का मतलब j, j का मतलब यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आपके सामने वैल्यू रख दी है, i स्क्वायर ऑफ 5 माइनस i। h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कॉमन डिफरेंस x डायरेक्शन में 1 लेना है। इसका मतलब IH के टर्म्स में क्या होगा? विशाल पंचेश्वर, कभी भी कोई भी आ रहा है मजाक समझ रहा है, पढ़ाई को ध्यान रखना। पढ़ाई को मजाक के रूप में लोगे तो कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे, वो आपके साथ मजाक कर देगी लाइफ में। काटू सत्य बोल रहा हूं बेटे। हाँ जी, अब इस बात को मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर रहा हूं। आई की वैल्यू 1 रखिए, तो आई की वैल्यू 1 के लिए आपके पास इसको सॉल्व करिए। आई की वैल्यू 1 रखिए, कर्तव्य चौहान रखो जरा इस फॉर्मूले। आई की वैल्यू 1, वाई तो आपका 0 है, जे की वैल्यू 0 है। बताओ क्या मिलेगा बेटे? ये मैंने इस पर पॉइंटर रख दिया है, रखो कर्तव्य चौहान, अर्पित वर्मा। आई की वैल्यू 1 रख, क्या मिलेगा? U1 0 की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 आएगा। 1 होती है और 5 माइनस 1 की वैल्यू 4 होती है, तो 1 इंटू 4 क्या होता है? 4 होता है। फिर आई की वैल्यू जरा 2 रखो। गौरव चौहान बताओ मुझे, U2 0 की वैल्यू क्या होगी बेटे? गौरव चौहान, संतोष 12। फिर यहाँ पर आई की जगह 3 रख, बता मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी? आई की जगह 3 रख इस फॉर्मूले में, और फिर आई की जगह 4 रख, और फिर आई की जगह 5 रख। इस तरह से आपके सामने फर्स्ट इनिशियल कंडीशन का एनालिसिस हो जाएगा। ग्राफिकल सेंस में हम अपने ग्राफ में इन वैल्यूज को शो कर देंगे ग्राउंड लेवल पर। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ut ऑफ x, 0 इक्वल टू 0। आपके पास दूसरी इनिशियल कंडीशन दे रखी है। इनिशियल कंडीशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब कोई कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन टाइम t के वैल्यू 0 के लिए डिफाइन होती है, स्पेसिफाई होती है, तो उस कंडीशन का नाम आपका इनिशियल कंडीशन होता है। आज की क्लास में कुछ लोग बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए, वो लोग दिमाग में क्योंकि कुछ पढ़ाई रिवीजन कर नहीं रहे हैं, भूल गए होंगे, इसलिए मैं ये बात को रिकॉल कर रहा हूं। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की फाइनाइट डिफरेंस के टर्म्स में वैल्यू क्या है वो हमें रखना होगी, क्योंकि ये नॉर्मली यदि u ऑफ x, 0 होता तो u ऑफ x, 0 होता तो आप नॉर्मली वैल्यू इंटरटेन कर लेते। ये आपका नॉर्मली नहीं है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। ठीक है श्रेयांश, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू है
टी के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, फॉर्मूला बताया था वो था ui ऑफ j प्लस 1 माइनस ui ऑफ j माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ k। सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी ui j प्लस 1 बराबर ui ऑफ j माइनस 1। इस फॉर्मूले को अपने केस में यूटिलाइज करेंगे। फॉर j इक्वल टू 0 के लिए ui ऑफ 1 की वैल्यू आएगी ui ऑफ माइनस 1। Now we can show the above boundary and initial condition in diagrammatical way or graphical sense, जिसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूं। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है, इसको आप फोटो ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं। यहां तक हमने कल की क्लास में लास्ट टाइम समझाया था इसके बाद टाइम पूरा हो गया था, फिर हमने कहा था कि हम अगली क्लास में इसको रिकॉल करेंगे। करें आगे, स्लाइड की तरफ आगे बढ़े। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन को और इनिशियल कंडीशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमको कॉमन डिफरेंस एक्स और वाई डायरेक्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, तो बहुत आसानी से ग्राफिकली इन वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भूल गए हैं वो यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए गाइस, पूरा क्लियर कट डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने। ये 1 2 3 4 5 हो गए 5 बॉक्स। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बॉक्स। एम आई राइट? श्रेयांश मार्क कर रहा हूं Yes, मैं, sir. समझा रहा हूं बेटे। ग्राफ में एनिमेशन नहीं हो सकता है, इसलिए आपके सामने मैंने लेजर पॉइंटर रखा है, जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है और वाई डायरेक्शन में टाइम है, जो कि टाइम डोमेन जिसको आप बोलते हैं। इस साइड में आपके सामने एक बाउंड्री है जो आपके सामने वैल्यूज दे रखी है, नहीं तो हमने अभी आपके सामने एनालाइज करके फाइंड आउट की है, रीजनिंग करके वो वैल्यू फाइंड आउट की है। उनकी वैल्यू को आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे क्या होता है, आई और जे दोनों जीरो होता है, इस पर वैल्यू आपको जीरो दे रखी है। फिर इसके बाद जैसे आप y डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, x कोऑर्डिनेट आपका i 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 1 से बढ़ रहा है, तो j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4, j की वैल्यू 5, इन सब पर वैल्यूज आपके सामने 0 दे रखी है। तो ये आपके सामने लेफ्ट साइड की बाउंड्री कंडीशन शो अप होगी। इसी तरह से दूसरे साइड में भी आपके पास बाउंड्री वैल्यू दे रखी है, जिनकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। तो यहाँ पर आपके पास i की वैल्यू 5 होगी है, मतलब x की वैल्यू 5 हो गई है। तो ये आपके सामने है 5,1, 5,1 मतलब y की वैल्यू तो 1 है मतलब j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू फिक्स हो गई है। जब अपन y के दिशा में आगे बढ़ते हैं तो y वेरी करता है, x कांस्टेंट होता है। ये तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट होता है, am I right? ज्योमेट्रिकली तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 is 0। अब यहाँ पर इस केस में ये जो आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो बाउंड्री वैल्यूज है आपको मालूम नहीं है, ये तो हमारे लिए अननोन्स है। तो ये वैल्यूज हमें निकालना है, ना केवल ये, साथ में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपके सामने ये ग्राउंड लेवल की वैल्यूज आपके सामने इनिशियल कंडीशन है। कैसे हमें पता लगा वो बात आपके सामने क्लियर होगी। i की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 0 किस पर होती है, x एक्सिस पर होती है, मतलब j की वैल्यू 0 है, जिस पर वैल्यू 4 निकाली आपने, जो दे रखी थी ये 12 दी हुई है, ये आपको 18 दे रखी है, ये आपको 16 दे रखी है और ये आपको 0 दे रखी है। इस तरह से आपका ये पहला रो हो गया जो कि ग्राउंड लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं एज ए इनिशियल कंडीशन। फिर आप लोग सेकंड रो पे जा रहे हैं, फिर थर्ड रो पे जा रहे हैं, फिर फोर्थ रो पे जा रहे हैं, फिफ्थ रो पे जा रहे हैं, सिक्स्थ रो पे जा रहे हैं। यदि अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो है। Am I right? It is an square arrangement as
दी वी कैन से दैट, हाँ दी। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी u11, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू तो 1 है, फिक्स है। ये आपका y तो फिक्स है ना, j की वैल्यू फिक्स है कि नहीं। फिर इसके बाद 3 1 थर्ड 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 कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। सो दैट इज आपकी रो वही है, ओके। तो आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू बढ़ गई है, आपकी आई की वैल्यू 4 हो गई है, दैट इज कॉलम आपका 1 है, मतलब जे की वैल्यू आपकी 1 है। फिर ऊपर चढ़ना है हमें इसी तरह से 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 और 1, 3। आई की वैल्यू तो 1 है, जे की वैल्यू आपकी 3 पे पहुंच गई है, फिर 4 पे पहुंच गई है, फिर 5 पे पहुंच गई है। इस तरह से ऐसा करते करते जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके सामने, ये सब आपके सामने अननोन्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये आपको पिछले वाले क्लास का कुछ आइडिया है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर भी इवैल्यूएशन करते हैं। पहले हम ये वाला जो लेवल है, सेकंड रो है, इसकी वैल्यूज हम पहले निकालते हैं और फिर इसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद फोर्थ रो में जाएंगे, फिर फिफ्थ रो में जाएंगे और फिर सिक्स रो में जाएंगे। क्योंकि जब आप ये निकालने जाओगे, इसमें आपको ये जो बाउंड्री कंडीशन है और ये इसके नीचे की जो वैल्यूज है इनिशियल कंडीशन, ये आपको रिक्वायर्ड होगी। और जब आप इस लेवल पे इनकी वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको इनकी ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस केस में भी आपको बॉटम से टॉप की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप टॉप से बॉटम की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप फार्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब इसको निकालना बैठेंगे शुरुआत में तो आपको इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, जब हमारा प्रॉब्लम वेव इक्वेशन का है तो हमें टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ आगे बढ़ना होगा। ये हमारा पूरा तरह से इस प्रॉब्लम के सलूशन का ओवरऑल एनालिसिस हुआ। अब हम इस बात को आपके सामने मैथमेटिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप पहले इस लेवल के इवैल्यूएशन करेंगे, फिर इस लेवल के इवैल्यूएशन करेंगे, फिर इस लेवल के इवैल्यूएशन करेंगे, फिर इस लेवल के इवैल्यूएशन करेंगे और फिर इस लेवल के इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमारे पास कितने मैथ्स पॉइंट्स हैं, कौन काउंट करके बताएगा बेटे? गौरव चौहान, काउंट करके बताइए कितने अननोन्स हैं आपके पास इस प्रॉब्लम में अंडर दिस इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। श्रेयांश, हर बार मुझे श्रेयांश से ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग भी तो कुछ आंसर दो। गौरव, कर्तव्य चौहान, अरे बाकी लोग म्यूट करके कोई भी एक जवाब दो मुझे, कितने अननोन्स हो गए? पूरा क्लियर बता दिया, काउंट करना है बस आपको। सर 20। 20 के हो गए? 1 2 3 4 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब कहने का एक में 4 अननोन है, ऐसे कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 चौका 20। ये मैंने इसलिए दोबारा बताया ताकि कुछ जो एक दो लोग जो आज की पहली क्लास इतने दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, सचिन पांडे, शशांक पांडे और आपके सामने प्रदीप जाडो भी हैं, मौजूद हैं इस क्लास में, जो कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सब मेथड काम आएगी। हाँ जी, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट स्लाइड को शेयर करें आपके सामने। अब अगला स्लाइड भी आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और तरकीब भी बता दी है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम इस लेवल पे इवैल्यूएशन करेंगे, तो यहाँ आपके सामने ये क्लियर कर दिख रहा है कि आई की वैल्यू क्या रखें और जे की वैल्यू उस फॉर्मूले में क्या रखें कि U11 मिल जाए। ऐसा हर बार सोचना है और कुछ नहीं करना है बेटे, अपने आप आपको एक्यूरेट आंसर मिलने लगेगा। यहाँ पर इटरेशन की मेथड लगाने की जरूरत नहीं। तो वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन में हमको इटरेटिव मेथड की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी की जो हमने लाप्लास इक्वेशन और हीट इक्वेशन बताई, उसमें हमें इटरेटिव मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा आंसर इतना सटीक नहीं आ पाता है। बार बार शॉर्टली के लिए मत जाइए, क्लास को छोड़ के बीच बीच में बार मत होइए। वही जो मैंने आपके सामने समझाया, मैं आपके सामने एक फेस में जो बचा हुआ टाइम है उसमें समझा रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा इस लेवल का
कैलकुलेशन करना है हमें U11, U21, U31 और U41 को हम पहले हमारा टारगेट बनाया हमने, पहले बॉटम से स्टार्ट किया है, तो बॉटम वैल्यूज आपके सामने जो आपकी सेकंड रो है वो वैल्यूज हमें निकालना है। और फिर इसके बाद हम दूसरी बार जाएंगे, फिर तीसरी बार जाएंगे, फिर इसके बाद जाएंगे और फिर लास्टली हम यहां पर जाएंगे। ठीक है बेटे, ये आपके सामने मैंने डिक्टेट कर दिया है कि हमारे को इतनी 20 वैल्यूज निकालना है। तो 20 वैल्यू एक साथ तो सारी निकलेगी नहीं, पहले ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी और लास्ट में ये निकलेगी। ओके गाइस, बढ़े आगे बेटे। ओके, अभी हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में आई और जे दो वेरिएबल हैं, तो हम एक को फिक्स रखेंगे और बाकी को चेंज करेंगे। तो हमारा पहला कैलकुलेशन है U11 का, तो यहां पर हमें कैसे पता लगा कि किसको फिक्स रखना है, किसको वेरिएबल करना है। तो ये देखिए जनाब बेटे, क्या फिक्स है आपके सामने, देखो इन वैल्यू को निकालना है, तो आपके लिए जे फिक्स है। एम आई राइट? ये टेक्निकल बात है, इसको फिर से समझिए। ये वैल्यू आपको निकालना है, तो इसके लिए आपका फिक्स क्या है बेटे, आप एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या फिक्स रहता है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है ना, वाई कोऑर्डिनेट मतलब जे। तो जे की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 1 1 1 1 यहाँ फिक्स है। तो हमें ये सोचना है कि उस फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखें, फॉर्मूला नंबर 3 में क्या वैल्यू रखें कि आपके लिए जे का वैल्यू फिक्स 1 हो जाए। तो आपका फॉर्मूला क्या है 3, उसको ध्यान दो, उसको फिर से देखो स्लाइड को। सारा फॉर्मूला ये रहा बेटे, ये देखो बेटे, हमें U1 तो वेरी करना ही है, तो यहां पर चूंकि J फिक्स है, तो J की वैल्यू हम क्या रखें, ताकि यहां पर J की कौन सी वैल्यू रखें कि 1 मिल जाए, बोलो श्रेयांश, J की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या रखें कि 1 मिल जाए, 0। अरे J की वैल्यू 0 रखना पड़ेगी ना, और स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही है। अरे J की स्टार्टिंग वैल्यू भी 0 ही है, एम आई राइट? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग उस पॉइंट पर, उस स्लाइड पे आ जाते हैं। ये रखा था हमने आपके सामने, ये J इक्वल टू 0 रखा, तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया UI ऑफ 1 एज इक्वल टू दिस। ओके गाइस, अब हमें इस फॉर्मूले से पहले U11 की वैल्यू निकालना है। तो U11 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, एक करके बता रहा हूं आपके सामने, बताओ इस फॉर्मूले में ये जो मैंने लेजर पॉइंटर रखा है, आई की वैल्यू क्या रखें कि आपको U11 मिल जाए, बोलो कोई भी जल्दी से बोलो, टाइम हो रहा है, बोलो श्रेयांश। सर 1 रखेंगे। आई की वैल्यू क्या रखे बेटे कि U11 मिल जाए, 1 1। और जब तुम U21 निकालोगे तो आई की वैल्यू क्या रखोगे जनरल फॉर्मूले में 2। और जब U3 की वैल्यू 2 निकालोगे तो क्या रखोगे बेटे 3। 3 और जब U4 लिखोगे, U41 की वैल्यू निकालोगे तो क्या रखोगे बेटे 4। उसके पहले हमारे पास एक फॉर्मूला रखा हुआ है, हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है कि UI1 की वैल्यू UI ऑफ -1 के बराबर है। तो पहले हम इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो UI ऑफ -1, क्योंकि UI ऑफ -1 की वैल्यू आपको हमने इनिशियल कंडीशन से फाइंड करके बताई थी, वो थी UI ऑफ 1। ये वैल्यू रखने के बाद फिर हम एक एक वैल्यू रखते जाएंगे इस फॉर्मूले में। उसके पहले इसको सिंप्लीफाई किया है हमने, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्लाइड पूरा हो गया है।
लिया, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। श्रेयांश, श्रेयांश, यस सर। इसको थोड़ा रीराइट करके लिख दिया। अब इसमें अपन ने आई की वैल्यू 1 2 3 4 रख दी, एक एक वैल्यू रखते जा रहे हैं और उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे को मालूम है डायग्राम से, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो ये पहला आंसर आ गया 6, फिर 2 रखेंगे, आई की जगह 2 रखेंगे तो ये दूसरा आंसर मिलेगा, फिर 3 रखेंगे तो आपको ये तीसरा आंसर मिलेगा, फिर 4 रखोगे तो ये आपका चौथा आंसर मिलेगा, एंड 5 रखोगे तो आपके पास ये पांचवा आंसर मिलेगा। जो भी आपकी गिवन बाउंड्री कंडीशन से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सिंपलीफाई किए। अब इसमें ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये बाउंड्री कंडीशन से ऑलरेडी 5,1 की वैल्यू 0 दे रखी है, जो कि हमने डायग्राम में बता रखी है। इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आंसर यही आना है, 0 ही आना है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकाले जाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपका सेकंड रो का कैलकुलेशन पूरा हो गया। बस इसी तरकीब को आगे की स्टेप्स के लिए रिपीट करना है। उन स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। अब आपका j इक्वल टू 1 हो जाएगा, ताकि आपका 2 फिक्स हो गया है। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने फॉर्मूला निकाला और वैल्यूज को निकाला, और चूंकि प्रीवियसली वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट लेवल पर, तो अब इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान रहेगा आपके पास। और ये वैल्यू आपको बाउंड्री कंडीशन से दे रखी है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड रो का काम हो जाता है। उसके पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फिक्स है उसको फिक्स वैल्यू पहले निकाल के फॉर्मूला बना लेंगे, और फिर इसके बाद जो वेरिएबल है आई की वैल्यू उसको नंबर वन बाय वन रखते जाएंगे, तो आपके पास नेक्स्ट अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें अगले लेवल पे जाना है, तो जे की वैल्यू 2 रखेंगे, तो आपके पास i3 लेवल पर वैल्यू का इवोल्यूशन होगा। फिर से वही i की वैल्यू 1 2 3 4 रखना है हमें, जिसमें प्रीवियस वैल्यू का यूटिलाइजेशन है। इस तरह से आपका इस लेवल पे भी डिस्कशन हो जाता है j इक्वल टू 2 के लिए, फिर j इक्वल टू 3 के लिए, फिर j इक्वल टू 4 के लिए और 5 के लिए। इस तरह से आपके पास सारी 20 वैल्यूज इवैल्यूएट हो जाती है। ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ये रहा आपके सामने I1 4 की वैल्यूज, I2 4 की वैल्यूज, 3 4 की वैल्यूज, 4 4 की वैल्यूज एंड 5 4 की वैल्यूज, जो आपकी बाउंड्री कंडीशन से आपको ऑलरेडी दी हुई है, जिसको हमने ग्राफ में भी शो कर रखा है। फिर हम बात करेंगे आपसे j इक्वल टू 4 के लिए और j इक्वल टू 5 के लिए। यह रहा आपके सामने j इक्वल टू 4 का कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप्स। 1 मिनट बचा है, और फिर ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिया है। ये आपके सामने i इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए कैलकुलेशन है, जिसमें आपके पास लास्ट लेवल की वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद की स्लाइड में थैंक यू वेरी मच है। उसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? किसी का रह गया पिछले वाला स्लाइड? शेयर करूं श्रेयांश? नो सर। ये देखो बेटा, एक बार और पिछला वाला दिखा देता हूं। ये इसके पहले वाला था, वो रखेंगे अपने आप 5 आ जाएगा, क्योंकि j+1 है, एक वैल्यू आगे चल रही है।